کورونا کا زور برقرار، اب تک 440 اموات، مہلک وائرس سے 19,103 شہری متاثر۔ پنجاب میں 7,106، سندھ 7,102، خیبر پختونخوا 2,907 اور بلوچستان میں 1,172 کیسز، 4,817 مریض صحت یاب۔ محدود رہیں، محفوظ رہیں۔ پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، مزید صنعتی ادارے، مارکیٹس کھولنے کی سفارش، مارکیٹس اور بازاروں کو زونز میں تقسیم کرنے کی تجویز۔ لاہور کے تاجروں کی 9 مئی تک ریلیف نہ ملنے پر خود دکانیں کھولنے کی دھمکی۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا 42واں روز، شہری پابندیوں میں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، سڑکوں اور بازاروں میں رش۔ کراچی جنوبی میں آٹو پارٹس ڈیلرز اور امپورٹرز کو آن لائن کاروبار کی اجازت، ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی قرار۔ کورونا وائرس ہے، کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگلے 6 مہینے یا پورا سال کورونا کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ دیر لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکتے، ڈنڈے کے زور پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں انہیں گھروں میں قرنطینہ کرنا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان۔ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا، وزیر اعظم کا یہ بیان کئی سطحوں پر پریشان کن ہے۔ ظاہر ہوتا ہے عمران خان میں ریاستی امور چلانے کی صلاحیت نہیں، شہباز شریف کا رد عمل۔ قومی یکجہتی کی ضرورت میں 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا، مانگے تانگے کی حکومت کی کوئی اوقات نہیں۔ سعید غنی کی تنقید، وزیر اعظم بتائیں آئین میں کتنے آرٹیکل ہیں، وزیر تعلیم سندھ کا چیلنج۔ عدم تعاون کا الزام مسترد، طبی سامان بر وقت فراہم کیا گیا، سندھ کے وزراء مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے پہلے حقائق دیکھ لیں، شہباز گل کا جواب۔ کورونا کے سامنے آنے کے بعد حفاظتی اقدامات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف برانچز کے عملے کو دفتر آنے سے روک دیا گیا، پیر اور منگل کو انتہائی محدود سٹاف عدالت آئے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور، وزیر آباد، جہلم سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ مری، گلیات، آزاد کشمیر میں بھی بادل کھل کر برسے، سلسلہ 3 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے 989 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں اور اس طرح متاثرہ افراد کی تعداد 19,103 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ 7,106 اور سندھ میں 7,102 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2,907 اور بلوچستان میں 1,172 کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا سے مزید 23 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، مجموعی تعداد 440 ہو گئی ہے، جبکہ 4,817 ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس وائرس کو ہرا دیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 989 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 19,103 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 7,106، سندھ 7,102، خیبر پختونخوا 2,907، بلوچستان میں 1,172 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں 393، گلگت بلتستان 356 اور آزاد کشمیر میں 67 مریض سامنے آئے ہیں۔ 20 گھنٹوں کے دوران 23 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 440 تک پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اموات 172 تک پہنچ گئیں، جبکہ سندھ میں 122، پنجاب 120، بلوچستان 19، گلگت بلتستان 3 اور اسلام آباد میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 102 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد یہ تعداد 4,817 ہو گئی ہے۔ پنجاب 2,206، سندھ 1,341،
खैबर पख्तूनख्वा में 728, बलूचिस्तान 183, गिलगित बल्तिस्तान 260, इस्लामाबाद में 55 और आज़ाद कश्मीर में 44 अफराद सेहतयाब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगले 6 महीने या साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ सकता है। जिसका टेस्ट मस्बत आए वो घर पर करंटीना करे। ज्यादा देर लॉकडाउन नहीं कर सकते और टैक्स कलेक्शन में 35% कमी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि एक माह में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए कम की है। बेरोजगार अफराद खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराएं, उन्हें एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे पहुंचाए जाएंगे। जो कोरोना वायरस है ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। एक तो हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन पैदा करके फास्ट डे रखते हैं। दूसरी चीज कि जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। ये ज्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके दूसरे इतने मनफी असरात माशियत के ऊपर इतने ज्यादा हैं कि वो अमीर से अमीर की भी गवर्नमेंट लोगों को का ध्यान नहीं रख सकती। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो 1 महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ। उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। खबर यह है कि पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केट्स खोलने की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। सूबाई काबीना ने सिफारिशात कौमी राबता कमेटी को भिजवा दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। लाहौर के ताजरों ने 9 मई तक रिलीफ न मिलने पर खुद दुकानें खोलने की धमकी दे दी है, जबकि कराची के ताजरों ने अमीनुल हक को मुतालबात पेश किए हैं। पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केट्स खोलने की सिफारिशात तैयार। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। मार्केट्स और बाजारों को जोन्स में तकसीम करके काम करने की इजाजत की तजवीज। मजीद सनती यूनिट्स को काम करने की इजाजत की सिफारिश, जिनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेज, एक्सपोर्ट सेक्टर, फीडिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिका दीगर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जिनके अंदर अपनी लेबर कॉलोनीज मौजूद हैं, उन्हें भी विफाक से खोलने की दरख्वास्त की गई है। उस्मान बुज़दार ने तमाम सिफारिशात कौमी राबता कमेटी को इरसाल कर दी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स टाइम की पाबंदी से मुस्तस्ना करार। अब यूटिलिटी स्टोर्स सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। लाहौर के ताजरों ने 9 मई तक रिलीफ न मिलने की सूरत में खुद दुकानें खोलने की धमकी दे दी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों के फैसले पर साथ देने का ऐलान कर दिया। बेशुमार मार्केट्स ऐसी हैं जो सीजनल हैं, जो ईद के दिनों में, जिनमें पूरे साल का दौर मदार उनके ऊपर है। अगर हुकूमत
9 मई को अगर अपना उसके बाद अनाउंस नहीं करती तो जो मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये होगा कि लोग फिर अज खुद दुकानें खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वफाकी वजीर अमीन उल हक से कराची ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर समेत दीगर ताजरों ने मुलाकात की। मुत्तहिदा रहनुमा का कहना था कि ताजरों की मुश्किलात से सूबाई और वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। कारोबार मरहलावार खोलने की इजाज़त दी जाए। लॉकडाउन से मुतासर अफराद के लिए खुसूसी पैकेजेस लाने की तजवीज़ देंगे। कराची जनूबी के कमिश्नर ने ऑटो पार्ट्स डीलर्स और इम्पोर्टर्स को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी। खरीदो फरोख्त ऑनलाइन सिस्टम के तहत हो सकेगी। कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। हुकूमत ने नादरा के तमाम दफातर पीर से खोलने का फैसला कर लिया। ऑफिसेज में दाखिले के लिए हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तर्जुमान के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक कराने वाले साइलिन को तरजीह दी जाएगी। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब से सनतकारों और ताजिर बरादरी के वफ़द की मुलाकात हुई है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपने मसाइल पर बातचीत की है। वज़ीर आला पंजाब ने ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सनतकारों और ताजिर बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। उस्मान बुज़दार से एतमा के सरदार गोहरा जासी सनतकारों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। बुनियादी तौर पर ये ताजिर बरादरी और सनतकारों के लिए मसाइल के हल के हवाले से ये मुलाकात थी और इस मौका पर वज़ीर आला ने उन मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर वज़ीर आला ने जो है वो सनतकारों और ताजिरों को बताया कि पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए और SOPs की खिलाफवर्जी पर जो है इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस हवाले से सिफारिशें तैयार करके वफाकी हुकूमत को पेश कर दी गई है। जबकि एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक जो फीडिंग इंडस्ट्री है उसको भी खोला जाएगा और पावर लूम्स को काम करने की भी इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला का कहना था कि ऐसी तमाम फैक्ट्री जिनके अंदर अपनी लेबर कानूनियाँ मौजूद हैं उन्हें भी वफाकी हुकूमत। ठीक है, शुक्रिया लियाकत अंसारी। खबर यह है कि बरतानवी दारुल उमरा के अरकान का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ख़त। अक़लियतों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोलने पर वज़ीर आला पंजाब को खिराजे तहसीन पेश किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन नेल्सन ऑफ लिवरपूल ने उस्मान बुज़दार को इजहार तशक्कुर का खत लिखा है और उन्होंने अक़लियतों के लिए हायर एजुकेशन में 2% कोटा मुकर्रर करने के इस फैसले को सराहा है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने अक़लियतों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोलने पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को खैराज तहसीन पेश किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड एल्टन ने अक़लियतों के लिए हायर एजुकेशन में 2% कोटा मुकर्रर करने के फैसले को सराहते हुए उनके साथ इजहार तशक्कुर किया है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को ख़त लिखते हुए उस फैसले पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है जिसमें हायर एजुकेशन में 2% कोटा अक़लियतों के लिए मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया है और इस लॉकडाउन के दौरान शहरियों की नकलो हरकत को रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद से इस्मा शौकत, कराची से शामिर खान और लाहौर से जाहिद आबिद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्मा शौकत यहाँ पे मौजूद है। इस्मा, बताइएगा यहाँ की सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सूरत हाल बिल्कुल गुज़श्ता दिनों की तरह ही दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के हम देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं इस्लामाबाद में भी, लेकिन शहरियों में संजीदगी जो है वो देखने में नहीं आ रही। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में तो देखने में आया था कि लोग जो है संजीदा दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन गुजरते जा रहे हैं शहरियों में जो है संजीदगी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस का डर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी इतवार का रोज़ा मैं फैज़ाबाद पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बिल्कुल आम दिनों की तरह दिखाई दे रही है। एक एक गाड़ी में जो है 4-4, 5-5 अफराद बैठे हुए हैं, डबल सवारी हो रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन वो भी देखने में आ रहा है कि चल रही है। इसके अलावा चेक पोस्टों पे भी अब दिखाई दे रहा है कि इंतज़ामिया थोड़ी नरमी दिखा रही है। कोई ख़ास जो है चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जा रहा, तो इंतज़ामिया की तरफ से भी अब देखने में आ रहा है कि ख़ास इकदाम
होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा अगर तादाद की बात कर ली जाए, केसेस जो हैं अब तक इस्लामाबाद में 393 हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि क्योंकि जो हिदायत जारी की जा रही हैं, मीडिया बता रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, इंतज़ामिया बता रही है, उस पर कुछ ख़ास अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शहरी संजीदगी से नहीं ले रहे। तो अगर यही सूरत हाल रही तो मज़ीद केसेस बढ़ने की जो है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, हो सकता है कि मज़ीद केसेस बढ़ें। जी ठीक है, यानी सूरत हाल संगीन भी हो सकती है। लाहौर चलते हैं, जायद आबिद से बात करते हैं। जायद, इतवार का दिन हो और जैसे आज बारिश हुई है, मामूल के हालात होते तो लाहौरियों का घर में रहना मुश्किल हो जाता, अब तो मजबूरन रहना पड़ रहा है उनको। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। खूबसूरत मौसम है लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक इस वक्त कम अज़ कम ना होने के बराबर है, इंतहाई कम है। एक तो लाहौरियों की कुछ देर से उठने की आदत है, तो लाजमी तौर पर ये इसमें कानून नाफज करने वाले इदारे जो अपनी जगह पर ज़रूर मुतहर्रक हैं, लेकिन लोगों की जो अपनी रवायात हैं उसके तहत भी इस पर सड़कों पर रश कम है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा यकीनन रश भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ नाके लगे हुए हैं, पुलिस के नाके हर जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर डबल सवारी पर पाबंदी और गाड़ी में ज़ायद सवारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और ये देखने में ये आ रहा है कि अब भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो डबल सवारी भी कर रहे हैं और गाड़ियों में फैमिलीज़ के साथ महवे सफ़र हैं, जिस पर यकीनन कानून को अमलदारी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो केसेस में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो सरकारी दादोशुमार जारी हुए उसमें 514 पंजाब में मरीज़ आए, जिसमें से 334 मरीज़ सिर्फ लाहौर के थे। इस तरह लाहौर के शहरियों में तकरीबन 2154 लोग ऐसे मरीज़ पाए गए हैं जिनमें पॉजिटिव कोरोना आया है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि लाहौर में इसके बढ़ने की शरह दीगर शहरों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर तवज्जो भी हुकूमत की जानिब से ज़्यादा दी जा रही है। पंजाब में अब तक तकरीबन 88,800 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 7,000 के करीब मरीज़ सामने आए हैं। तो हालात ऐसे हैं कि जिसमें हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं, आवाम अगर उस पर पूरी तरह साथ नहीं देती तो यकीनन वो नताइज हासिल नहीं होते। आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में हमारे साथ शामिर खान मौजूद हैं। शामिर, बताइएगा, लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल तो हमने जानी, कराची के जो शहरी हैं वो किस तरह से इस लॉकडाउन को ले रहे हैं? आज बिल्कुल आज छुट्टी का दिन है, इतवार का रोज़ है। जो सड़कें हैं वहाँ पे मामूल से खासा कम ट्रैफिक देखने में आ रहा है। कुछ सूरत हाल तब्दील दिखाई दे रही है। रोज़ाना अगर हम देखें तो शहरियों की बड़ी तादाद थी जो कि सड़कों पर दिखाई देती है। ट्रैफिक भी खासा बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई देती है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो साथ साथ मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि आप पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। चालान का सिलसिला भी जारी है और जो डबल सवारी पर घूम रहा है या ज़ायद सवारियाँ गाड़ी में हैं उनको भी रोका जा रहा है। कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में जो आदाद शुमार सामने आया उसमें 427 केसेस सिंध भर में रिपोर्ट हुए, जबकि 376 केसेस ऐसे थे जो कि सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए। 4 अफराद इस वायरस का शिकार होकर जहाँ भाग भी हुए हैं। तो ये वायरस तो फैलता जा रहा है। लॉकडाउन में सख्ती के लिए सिंध हुकूमत जो है बारहा हिदायत जारी कर रही है कि शहरी जो है वो घरों से ना निकलें, बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें, महसूर रहें घरों पे। लेकिन जब हम देखते हैं कि अफ्तार का टाइम करीब होता है, शाम के औकात में लोगों की बड़ी तादाद शहर की सड़कों पे उन मकामात पे मौजूद होती है, जमा होना शुरू हो जाती है जहाँ पे कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन SOPs का वहाँ पे भी ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा होता। शहरी मास्क नहीं पहन रहे होते हैं, ग्लव्स नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यकीनी तौर पे कराची के शहरी भी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। शामिर खान कराची से, लाहौर से जायद आबिद और इस्लामाबाद से इस्मा शौकत अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।